So, good morning, everyone who all are present here. This is Shalini Poddar from Bokhara Global School, and today I am going to take a free webinar on the situation of the physical activities in the pandemic. And we have our guest with us. We have Mr. Digvijay Singh Parihar. Okay, as he is there. Digvijay sir is there. Okay, you're not able to hear us. Fine. Okay, so I'll introduce you first and then we'll just check the network issues, whatever you have. Okay. So he is now a physical instructor in Ganasthali Group of Institute. It's in Itawa. And he did his master degree from Noida College of Physical Education. And he did his NIS in health and fitness and judo. Okay. And he has participated at the national level in judo, and he is a state level player of wrestling, and he has participated in karate as international level as well. Okay, so good morning, sir. Good morning. So today we'll discuss about the situation of physical activities during this pandemic. Okay, as we are aware of this pandemic, during this time of crisis, as everyone is working from home, gyms are shuttered, some parks has been deemed off limits, and athletic events have been cancelled for who knows how long, and there was no place for the workouts. So the importance of games has come clearly than ever. I'm sure in your home, you too must be trying to occupy the nervous mind of you and your family. Games can occupy our chattered filled minds, cut through the boredom of being quarantined, keep our awareness in the present moment, create a shared adventure, and challenges ourselves to improve in some way. Despite all the bad headlines, I remind you with the good news what is the virus can't affect an athlete's urgent need to find games to play and novel adventure to give them a daily spark. All through our original goals are now in interruption. COVID-19 can't stop us from creating new challenges that incorporate some of the same purposes, perhaps in a new form. To that end, many are enjoying different kind of virtual workout classes like cardio, dance, yoga, where they can enjoy being beginners again. Some immediately see that their frustration and lack of acceptance of the current circumstances in sports is making them unhappy. So, however, need convincing that a temporary shift away from specific triathlon training to try something new is worth it. So, thank you. Stay home, stay safe. I'll add further. The coronavirus diseases pandemic forced the world population to alter daily routines, including exercise habits. This unusual situation has physical, psychological, and behavioral consequences to all individuals, including allied and recreational athletes. Life in lockdown has been difficult because everyone has to stay safe and healthy, while at the same time abiding by new norms. Currently, mitigation strategies have been widely implemented to contain the spread of COVID 19. These measures include lockdown, social distancing, personal perspective measures, and environmental and surface cleaning, as you must be knowing that. We advise people to wear face masks during low to moderate intensity exercises outside, such as brisk walking and jogging, while maintaining a safe physical distance, minimum 2 meters away, and personal hygiene in public. However, the use of face masks may compromise breathing and oxygen uptake in high intensity, which are not recommended during these times. Each sports and activity is categorized by risk by the general classification, and they are low risk. It means that we should exercise at home alone with shared household members
with owned and sanitized equipments. The second is minimum risk. It's also known as medium. We can say that it's a medium risk. It includes exercise at public, alone, or with shared household members, and not more than 5 people with own and sanitized equipment. And the third we have is high risk. Group exercise with non-household member in private or public, not physically distant with shared equipment. COVID-19 caused the suspension of supporting events, closure of gyms and fitness center, and restrictions on outdoor activities. These factors lead athletes to modify their exercise programs and train at home, most of which are not supervised by medical staff or coaches. Several athletes have a minimum gym and or fitness equipment at home to train individuals. During this period, their aim should be able to maintain at least not lose their current fitness level. These social distancing measures mean that people have a far fewer opportunities to be physical active, especially if activities such as walking or cycling as a transportation or taking a part in a leisure activities. As we can say that jogging, walking, yeah, walking with dog or going to the gym are being restricted. Furthermore, these drastic measures also make it much easier to be sedentary at home for long period of time. The impact of this physical inactive may very likely to be seen in many areas, such as health and social care and the mental well-being of people all across the globe. And the things that we can do at home that we did really at home in this pandemic are cycling with the face mask, of course, walking, we played with kids, gardening, and of course, house cleaning. Okay. So for prevention, like how we can be protected with the novel coronavirus, will information will be added by Mr. With our guest, Mr. Digvijay Singh. Sir, over to you. Like how we Hello can. everyone. Yes, sir. Uh, ये सिचुएशन जो इस समय है, ये मेन सिचुएशन इसका डील करने के लिए हमें इससे अच्छा होता कि हम पहले से अगर अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके रखते तो हमारे लिए काफी बेटर होता। ये सिचुएशन जो इस समय इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम पहले से अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाते तो ये काफी अच्छा होता, हमारी कंडीशन इतनी वर्स्ट ना होती। या किसी भी कंट्री में, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, हमारा शेड्यूल जो है इस तरीके का है कि या तो हम ब्रेकफास्ट में अच्छी चीज़ों को गेन नहीं करते हैं। कुछ फूड हमारा जो है डेली रूटीन में, हमारे फूड ऐसे हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, जो कि हमें किसी भी तरीके से इम्यूनिटी के पास नहीं ले जाता है। हमारी इम्यूनिटी को वो बल्कि वीक करता है। कई तरीके की बीमारियाँ, कई तरीके की डिफरेंट डिजीज़ हमारी बॉडी में इसके थ्रू क्रिएट होती हैं। तो अगर हम पहले से इस चीज़ पर ध्यान देते, या तो एक्सरसाइज़, अगर किसी पर्सन को, जैसे कि आपको पता है इस सिचुएशन में सारी जिम बंद कर दी गई थी। पार्क जो थे, पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं, यहाँ पर लोग रूटीन से जाके एक्सरसाइज करते भी थे, ठीक है? लेकिन ऐसे टाइम पर वहाँ पर जाना भी किसी को गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोगों को पास पहले से ये सारे नॉलेज होते कि हमें डाइट में क्या लेना है, क्या चीज़ें हमारी डाइट को, कौन सा ऐसा फूड है जो हमारी डाइट को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कौन सी एक्सरसाइज है जिन्हें हम घर पर भी कर सकते हैं। हर एक मसल की ऐसी एक्सरसाइज होती है, फ्री वेट एक्सरसाइज, जिसको हम घर पे भी अपने करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे सिस्टम हमारे घर पे भी अवेलेबल होते, लेकिन हमें नॉलेज नहीं था, पहले से हमारे पास ये नॉलेज नहीं था, हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये पार्क और जिम वगैरह बंद होने के बाद ये सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हुई। तो इससे बचने के लिए हमें क्या है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए था पहले से। तो अब हम क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ऐसे फूड जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो साइट्रिक एसिड वाले फूड हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, ठीक है? इस तरीके के जो फूड हैं, फ्रूट्स हैं जो हैं, इन्हें हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। वार्म वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्लैक सॉल्ट, जो कि पहाड़ों से हमारा निकलता है, क्या कहते हैं, काला नमक, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। योगा, प्राणायाम, डेली रूटीन एक्सरसाइज, आप घर पे प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। टीवी पर भी इनके पुराने आप
रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, उसको फॉलो करके भी आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमने इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हम इस तरीके की बीमारियाँ इन फ्यूचर भी हम इनसे बच सकते हैं, और अदर डिजीज़ जो भी हैं, हम उनको भी काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, उनसे भी काफ़ी हम बचाव अपना कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई पर्सन इस डिजीज़ में, इस तरीके के किसी भी डिजीज़ में फँसता है, तो केवल वो एक पर्सन इससे डिजीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसके साथ-साथ पूरी फैमिली, पूरा एनवायरनमेंट और नेबर, सभी लोग इस वजह से वहाँ पर परेशान होते हैं। उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होता है, और पूरा फैमिली का जो आपका एनवायरनमेंट है, वो पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। तो इससे बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी फैमिली की इम्यूनिटी को बूस्ट रखें। ऐसी चीज़ों को, ऐसे डाइट को फ़ॉलो करें, ऐसी एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करें, जो नेचुरली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करते हों। जिससे कि हमें फर्दर किसी भी तरीके की कोई डिज़ीज़, कोई बीमारियाँ ना लग सके हमारी बॉडी में। मैम? Sir, if you have any questions, please drop the questions in the chat box. If you have any questions, you can drop your question query in the chat box. We'll answer that at last. And sir, I have a question. Sir, it's like, agar age, is there an age category or special, like specific disease कि वो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं और कम इफेक्ट हुए हैं? Is there in any category? सपोज ओके, किसी को यस। एक्चुअली क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी चाइल्डहुड जो ग्रुप है, और जो आपका एडल्टहुड है, आफ्टर एडल्टहुड, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, इन दोनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा डिजीज जो है वो कवर करती है। क्योंकि यहाँ पर इन बच्चों में और जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, इन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो वीक होता है। इसलिए ये इस तरीके की जो डिजीज है, ये इन लोगों को, इन दो कैटेगरीज को ज्यादा कवर करती है। तो जैसा कि आपने पेशेंट की, अगर आपने देखे होंगे अभी, जो ओवरऑल पेशेंट का जो हमारा काउंटिंग है, अगर आप उसको भी देखेंगे, तो इस कंडीशन में, कैटेगरी में, आपको बच्चे और एजेड पर्सन जो भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जो मिडिल एज है, उनमें इतना इफ़ेक्ट इसका नहीं है, क्योंकि उनका डेली रूटीन भी एक्टिव रहता है, और बच्चों का या फिर जो बूढ़े लोग हैं, इनका एजेड पर्सन है, इन लोगों का रूटीन इतना एक्टिव नहीं होता है। तो इस वजह से इन लोगों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखा गया है। तो ऐसी कंडीशन में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर, डाइट पर ध्यान देना है। जैसे कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, और सर्दियों में हमें वैसे भी गर्म पानी का यूज़ करना चाहिए पीने के लिए, ताकि मेटाबॉलिज़्म हमारा अच्छा रहे और इम्यूनिटी बूस्ट रहे। उसके साथ-साथ अगर आप मार्केट में, जैसे कि इस समय कंडीशन है, कंडीशन अगर इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होती, तो आप मार्केट से जो चीज़ें हैं वो भी परचेज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपके घर पे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनका यूज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी वगैरह है, टर्मरिक है, ये आपका नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होता है, एंटीबायोटिक है। तो जैसे हल्दी है, धनिया है, लहसुन वगैरह है, जीरा है, ये सारी चीज़ें आपके घर पे भी, आपके किचन में अवेलेबल हैं, और इनका यूज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हल्दी दूध है, टर्मरिक विद मिल्क, आप उसमें मिक्स करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी पर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। विटामिन सी, ठीक है? ओके। विटामिन सी वाले जो भी फ्रूट्स हैं, आपको उन्हें भी अपनी डाइट में ऐड करना है। और पूरा दिन में आपको रूटीन में अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका की वाटर कैपेसिटी है, यानी कि आप वाटर जो अपनी डेली रूटीन में ले रहे हैं, वो इनफ एडिक्वेंट अमाउंट में लेते रहें, एप्रोप्रिएट अमाउंट में लेते रहें पानी को। इसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरा, आप अगर किसी तरीके की, जैसे कि आपको पता है कि इसमें इम्यूनिटी खत्म होने की वजह से, या इम्यूनिटी लो होने के बाद, इसमें सबसे पहले कफ है, खांसी है, जुकाम है, फीवर है, ये सारी प्रॉब्लम्स इस पेंडेमिक में ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं। तो इनसे बचने के लिए, जैसे ही आपको लगता है कि अगर आपको इम्यूनिटी आपकी खराब हो रही है, या फिर आपको जुकाम या कफ या इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बेसिक नेचुरल चीज़ है जो आपके घर पे अवेलेबल है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। वो है आपका काला नमक और वाटर। इसको आप रात में, अगर सोने से पहले आप इसको लेते हैं, तो इससे भी आपका ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग फेज़ जो है, इसको आप कवर कर लेंगे। ये प्रॉब्लम्स आगे नहीं बढ़ेंगी। नेक्स्ट है आपका प्राणायाम, योगा। काफ़ी सारे प्राणायाम हैं,
योगा हैं जो आप टीवी पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और उनको आप फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। एंड जब से ये पैंडेमिक आया, आई गेस मेनी वीडियोस एंड images have been started uploading in the YouTube, and many people have यस, started taking, and if the people have Zumba trainers and yoga trainers, they are starting taking online classes nowadays. But sir, I have a question, one more question, like now slowly the things had been unlocked, okay, and gym, parks, they are open. So is it safe hai jana, like and usually when we go around, we don't see people wearing mask, and if they're wearing mask, they don't cover their nose, they just cover their face, like mouth. So it is safe going there, because when we will do exercise with the mask, definitely we are going to have the breathing problem, यस। isn't it? Because usually mask cover the nose, so walking या फिर running करते, jogging करते time breathing issues होते हैं। ऑब्वियसली तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, लाइक अगर हमें जिम देखिए भी नहीं जाना और ब्रीदिंग का भी हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो उसका अल्टरनेट क्या होगा? देखिए एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जो मास्क हैं, वो किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक है? ये जो हमारी डिज़ीज़ है, ये किसी भी तरीके से मास्क अगर लगाते भी हैं आप या नहीं भी लगाएँ या मास्क लगाते भी हैं, तो ये बिल्कुल 99% जो है, वो इस बीमारी को प्रिवेंट नहीं कर रही है। ठीक है? तो मास्क का कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है। हमें कॉन्टैक्ट से बचना है, सोशल कॉन्टैक्ट जो है, हमें उससे बचना है और उसके लिए उससे अच्छा होगा सोशल कॉन्टैक्ट से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अ, जो हमारा कॉन्टैक्ट है, सोशल कॉन्टैक्ट है, उसको लिमिटेड करें। आप जिम में जाएँगे तो बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पर स्वेटिंग भी होती है, कुछ लोग टॉवल का यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मशीन्स पर जो स्वेट होता है, वो भी बॉडी कॉन्टैक्ट है। आप जाकर उसका यूज़ करेंगे तो वो आपके कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है? अब अगर आपकी ब्रीथिंग आप ऑब्वियसली आप जिम में हैं, आप वर्कआउट करेंगे और उस समय पे आपकी ब्रीथिंग फास्ट होना नॉर्मल बात है। जब आप ब्रीथिंग करेंगे, उसमें आप मास्क लगाएँगे तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। तो या तो आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पाएँगे या फिर आप ब्रीथिंग नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से दोनों ही काम आपके खराब होंगे। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो फ्री वेट वर्कआउट है, उसको आप उसके आप नॉलेज लें, उस नॉलेज का यूज़ करें घर पर, ठीक है? घर पर या पार्क पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा रश ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, वहाँ पर आप फ्री वेट वर्कआउट का अगर आप यूज़ करते हैं, प्राणायाम आप घर पर भी कर सकते हैं और योगासन आप घर पे ही कर सकते हैं। फ्री वेट वर्कआउट का यूज़ आप घर पे कर सकते हैं। मैनी एक्सरसाइज़ आते हैं, जिन्हें आप बिना वेट के, बिना डंबल्स के आप घर पर भी करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ ऐसी अवेलेबल हैं। तो सोशल कॉन्टैक्ट से आपको बचना चाहिए। मास्क मेरा मानना ऐसा है कि मास्क जो है वो प्रिवेंट नहीं करते। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि N95 जो मास्क हैं, वो भी इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि मास्क ऐसा नहीं है कि आप मास्क लगा लेंगे तो ये बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ठीक है? आपकी ब्रीथिंग में नहीं जाएगी लेकिन आपके बॉडी कॉन्टैक्ट में वो वायरस जो है वो तो आएगा और वो कहीं न कहीं आपकी फिर बॉडी में भी अंदर जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको सोशल कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए। ओके, द मेन थिंग इज मास्क, बट आजकल काफी डिजाइनर मास्क अवेलेबल है मार्केट में, एंड इट्स नाउ यूजिंग फॉर द मैरिज पर्पस आल्सो, but yes, we can say that N95 is the authentic mask, isn't it? मास्क का क्या है कि आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं। मास्क आपको पॉल्यूशन से सेव कर सकता है। पॉल्यूशन से आपको बचा सकता है, जो डस्ट पार्टिकल्स आपके एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में हैं, ठीक है? उड़ रहे हैं आपके साथ में, उससे भी कई सारी डिज़ीज़ होती थी, लंग्स प्रॉब्लम होती थी, पल्मोनरी एडेमा इस टाइप की जो डिज़ीज़ हैं, वो आपको लंग्स को इन्फेक्ट करती थी, ठीक है? आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करती थी। तो मास्क लगाने से बेनिफिट ये है कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है? लेकिन कोरोना और कोविड-19 जैसी कंडीशंस में ये इफेक्टिव नहीं है। Sir, but what about N95? Because doctor also recommend N95, that people should wear यस N95. स्टार्टिंग में डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड किया था लेकिन आफ्टर दैट जो रिजल्ट आया था, जो उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी उन्होंने बोल दिया था गवर्नमेंट ने कि N95 जो है, वो पूरी तरीके से इस मास्क जो है, वो इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। Hmm. तो Okay. मेन चीज़ ये है कि हमें सोशल कॉन्टैक्ट से बचना है। Okay, but okay, thank you, sir. But I can say that, I mean, I think you all must be agree with me that when this COVID came into resistance, people were more trend
means people were more diverted toward the physical activities. They must be not doing Yes. these activities earlier, but when they came to know that we need to increase our immunity system, and we need to eat healthy foods, and wash their hands, and because earlier physical activities was like doing PT at school, or simply going to gym, or ladies go to yoga or Zumba for weight loss, but indirectly, yes, they were increasing their immunity system. So at that time, people really like felt the importance of physical activities. इतने टाइम घर पे बैठे रहना एंड ऑल, it was totally boredom for them. So many videos and all, they came into resistance. Yeah. So if you have any queries, you can drop the questions in the chat box. We can answer you at last. And you would like to add something more, sir? Or it's done? नो, दैट्स ऑल कि हमें मेन चीज ध्यान देनी है अपनी इम्यूनिटी पर। उसके लिए जो बताया गया है नेचुरल चीजें उनका यूज करें, सोशल कांटेक्ट से बचें, और मास्क जैसा कि आप जानते हैं मास्क आप पहन के रखें। तो ये आपको कोरोना का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अदर डिजीज से भी आपको ये काफी ज्यादा प्रिवेंट करेगा। तो उसके अलावा ये अदर डिजीज से आपको प्रिवेंट करेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। But sir, I नेचुरल can. रिसोर्सेज, Yes, sir. इम्यूनिटी Okay. उनसे बचना है। और अगर फायदा ये है कि जैसे कि आपके पास में अगर कोई पर्सन कांटेक्ट में बहुत ज्यादा पास में है और वो अगर स्नीजिंग करता है, छींकता है किसी तरीके से, तो वो डायरेक्टली आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बचना है सोशल कांटेक्ट। But I can say that because of this COVID, uh, people, yes, they were doing things, activities, so that they can stay away from the coronavirus. But yes, because of that, people were getting cured for many other diseases like obesity. They were coming up, like they were avoiding obesity. Now they started healthy. They started eating healthy things, and they're starting doing workouts. So now the gyms and all are in very demand. They are in so much demand. So yes, we can say that physical activities, they came into like highly demanded. Physical activities were highly demanded in this COVID situation. Yes. So, do you agree on that, sir? यस मैम, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है आपकी। Sir, can you tell us लोगों that, का sir, if you are a sports teacher, yes, I have one question. You are a sports teacher, fine. So you must be knowing the importance, like what normal people used to think of, what people of different ages, they think that what actually the sports in school, fine, but what actually we are doing in school, that is totally different, isn't it? यस यस, काफी समय से या पहले भी जैसा कि होता था स्कूलों में रूटीन है, जो भी पेरेंट्स हैं वो भी जानते होंगे कि जब वो अपने स्कूल्स में थे, जब अपने उन्होंने अपने स्कूल के टाइम पे ये सारी चीजें देखी होंगी कि टीचर्स उस समय पे क्या होता था, ये फिजिकल एजुकेशन जो था वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था। उस समय केवल एक गेम्स का पीरियड होता था। वहाँ Yeah, पर टीचर्स क्या true. इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता था, इक्विपमेंट प्रोवाइड करते थे, जिसके बाद बच्चे उनको लेके खुद ही आपस में खेलते थे विदाउट एनी रूल। ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, उनको जैसा मन होता था वो उस तरीके से गेम्स में अपना काम करते थे, गेम देखते थे अपना। लेकिन करंट टाइम पे ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम एंड इट्स अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें होती हैं। अदर सब्जेक्ट का मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जैसे अदर सब्जेक्ट्स में कि वो जॉब के बाद वो चीजें काम नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स है, कई सारी उसमें डेरिवेशन होते हैं, इक्विपमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो कि, या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, जो कि जॉब के बाद उनकी जॉब या उन्हें किसी पर्सन को अगर जॉब मिलती है तो उसके बाद वो सारी चीजें उसके किसी लाइफ में किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, बट फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको साइकोलॉजी भी मिलेगी, जिसमें फिजियोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी है, फर्स्ट एड भी है, कैसे आपको पर्सन का अगर आपके घर पे कोई इंजर्ड होता है तो आपको उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, कौन सी बोन्स कहाँ पर है। तो ये सारा नॉलेज आपको, एक फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको ये सारा नॉलेज एक ही जगह पे मिलता है। और
हम ये सारी कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये सारा नॉलेज दे सके, ताकि ये सारी चीज़ें उनके लाइफ टाइम काम आ सके। वो अपने लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी, या अपने आस-पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो वो इस नॉलेज के थ्रू किसी पर्सन की लाइफ भी बचा सकते हैं और ये नॉलेज उनकी लाइफ टाइम काम आने वाला होता है। And this knowledge helps them in preventing coronavirus as well. यस, ऑल्सो Yeah. डेफिनिटली। Yes. Okay. Thank you so much, sir. Let me. So I'll just check the chat box if others have any queries. ओके, Yes. So till now, I didn't receive any query, any question from them. ओके। Yeah. So shall we end our meeting up? यस मैम। Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. Okay, so today we discussed about the situation of physical activities, and we came into the conclusion like, yes, it's important. We have many YouTube videos, and now the gyms are open, parks are open, but please do take care of the self social distancing, and do wear mask and sanitize yourself. If possible, do the things and exercise at home. And if you are going to gym or anywhere, please keep like just make sure that the equipments are sanitized. Okay. So thank you so थैंक much, यू सो sir. मच।